Hello everyone, I am Ajay sir, founder of Goal Achievement Point Sangrampur. Today in this video I am going to discuss how a student can improve their English spoken skills. Because I see most of the students are so energetic and laborious that they can complete their courses within 60 days, 70 days approximately. They need proper guidance and a platform where they get the environment of English. For speaking English, I am not saying that you must have more knowledge of word meanings, English word structures. According to me, if you have determined that you have to speak English, it will become very easy. It's my opinion. First and foremost, you have to make your mind creative. You will have to think in English each and every time. You will have to speak English when you meet your friends, your classmate, anywhere. There are many places where it may be that you will not get proper place, because if you will belong from a local area, then you will feel that maybe there will be no students who can talk to you in English. But I will tell you, there is no need anyone to discuss. You can practice yourself, and practice is the weapon through which you can improve your English language. Just for this I have written a story. You will have to also make your mind creative, and you will have to write something in English, like your daily routine, your hobby, your dream. And for this, it is important to know some rules, identifications, because we belong from a locality where Hindi is mostly spoken. Then that at the beginning we will not speak fluently. Don't mind for it. Practice more and more. Write a story as much as possible. Just like I have written a story, Journey on a Historical Place. It has not been taken from any book. It is the creation of our mind. This story is also given to the students who are preparing for spoken. And I suggest all the students to write the stories as much as possible. Then first and foremost, I am going to analyze this story. जर्नी ऑन ए हिस्टोरिकल पैलेस, किसी ऐतिहासिक जगह के बारे में आपको लिखना है. देखिए कह रहा है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है. आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. ये मंद ग्रंथ कहानी है. कुछ भी आप सपोज करके लिख सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई रूल्स इसका नहीं है. कहानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई भी इंसिडेंटल प्लेस लेकर हम लिख सकते हैं. तो कह रहा है एक समय की बात है. आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. मैं क्लास 9 का विद्यार्थी था. द नेम ऑफ माई स्कूल वाज +2
high school Manglapur, Sangrampur. Maybe from anywhere you belong, you can write the name of your school. Just I have written +2 हाई स्कूल मंगलापुर। तो मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। देयर वेयर 300 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। लगभग मेरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी थे। माई क्लास टीचर वाज पॉन सर। यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर टीचर, जस्ट आई हैव रिटन। मेरे क्लास टीचर का नाम पॉन सर था। वो आज वेरी नाइस टीचर, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। ही मेड ए प्लान। एक बार उन्होंने एक प्लान बनाया टू विजिट द संजय गांधी बोटनिकल गार्डन पटना। जो संजय गांधी बोटनिकल गार्डन पटना में है, वहाँ पर घूमने का उन्होंने प्लान बनाया। वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो इट। हम लोग इसको जान के बहुत खुश थे। बट वी हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स। लेकिन हमें जो है अपने माता पिता से परमिशन भी लेना था। हु वांट्स टू गो, जो जाना चाहते थे। आई केम होम, मैं सीधा घर आया एंड आस्क्ड माई मदर अबाउट इट। मैंने आकर अपने माँ से इसके बारे में पूछा। बट सी रिफ्यूज, लेकिन वह तो बिल्कुल इनकार कर गई। आई बिकम वेरी सैड, मैं बहुत ही उदास हो गया। अगेन आई अप्रोच टू माई फादर, फिर मैं अपने पापा के पास गया एंड रिक्वेस्टेड अबाउट इट, इसके बारे में उनसे आग्रह किया। डैट मोस्ट ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर गोइंग, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो अच्छे भी दोस्त हैं वो भी जा रहे हैं। आवर टीचर्स विल ऑल्सो गो विथ अस। हमारे जो शिक्षक हैं वे लोग भी हम लोगों के साथ जाएंगे। आवर टीचर्स विल ऑल्सो गो विद अस। देन ही एग्रीड, उसके बाद वे एग्री हुए एंड अलाउड मी टू गो, और मुझे आई बिकेम वेरी हैप्पी एंड वेंट टू स्कूल नेक्स्ट डे। मैं बहुत ही खुश हुआ, अगले दिन स्कूल गया एंड इनरोल माई नेम फॉर गोइंग टू पटना। और पटना जाने के लिए मैंने अपना नाम उसमें नोट दर्ज करा लिया। ऑन द डे ऑफ मंडे, मंडे के दिन एट 6 AM ऑल ऑफ अस हैड टू कम एट स्कूल कैंपस। हम सभी को स्कूल कैंपस में आना था। फ्रॉम देयर वी हैड टू गो बाई बस। वहाँ से हम लोगों को बस से जाना था। वी गेदर देयर, हम सभी वहाँ पर आए, इकट्ठे हुए ऑन टाइम, समय से। द बस टाइम, द बस वाज जय माता दी, जो ऑफ नहीं हुआ। हिज ड्राइवर वाज वेरी एक्सपर्ट। उसका जो ड्राइवर था बहुत ही एक्सपर्ट था और चतुर था, स्मार्ट था। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर सिंगिंग सॉन्ग। कुछ मेरे दोस्त लोग गीत गा रहे थे एंड मेकिंग जोक्स। कुछ लोग जो है जोक्स वगैरह भी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। वी इंटर्ड एट डैडजू। उस चिड़ियाघर में हम लोग पहुँचे एट 10 AM, लगभग 10 बजे। वी वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी इट। हम लोग इसे देखकर बहुत एक्साइटेड थे। वी इंटर्ड इन द जू बाई टेकिंग टिकट ऑफ 5 रुपीज़। लगभग 5 रुपये का टिकट लिए हम लोग, उसके बाद जो है उसमें इंटर किए। We saw many kinds of animals, birds, fishes, etc. etc. तो वहाँ पर हम लोग कई तरह के पशु पक्षी इत्यादि देखे। सम ऑफ देम वेयर वेरी रेयर स्पीसीज। उसमें से बहुत तरह का जो हम लोग जो देखे वह जो है बिल्कुल रेयर था, दुर्लभ प्रजाति के था। वी टुक फोटो ऑफ मैनी साइट्स। हम लोग कई दृश्य का फ़ोटो भी लिए। डैट वाज स्ट्रेंज फॉर मी, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल अनजान था। और टीचर्स ऑल्सो गाइड अस। हमारे शिक्षक लोग भी हमें गाइड किए। अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ के बारे में बताए। वी टुक लंच इन ए होटल। हम लोग एक होटल में लंच लिए एंड वी कम रेडी टू रिटर्न एट होम। उसके बाद घर आने के लिए तैयार हुए। वी रीच्ड एट होम लेट एट नाइट। रात में देर रात को हम लोग वापस आए। माई पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर मी। मेरे माता पिता भी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे। आई टुक सपर, मैंने रात का भोजन लिया एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ था। इट वॉज ए वेरी प्लेजर ट्रिप ऑफ माई लाइफ। यह मेरे जीवन का बहुत ही प्लेजर ट्रिप था। सो लाइक दिस यू विल हैव टू ऑल्सो मेक सम स्टोरीज and we'll have to write. After then, practice this story more and more. It may be that if you fears to be speak before anyone, then you can
see your face in the mirror. In front of mirror you can also practice your English skills. As much as possible you will have to make sentences and will have to speak. I've already given many types of spoken tricks in videos. You can also see through these structures and identification. Make more and more sentences as practice and write down some short story. It will be very useful, and through this I am sure you can improve your spoken English. Thank you.